Hello students, good evening to all. Myself Rahul Srivastava, your science educator. So welcome back to the Chanakya classes. And here the LiceMeet application which you can download from the Play Store and enjoy online learning. Students, you may also watch the videos on YouTube by typing the LiceMeet application or LiceMeet channel. So students, this is our second lecture of class 6th and we have studied the chapter separation of materials. So in this lecture, we will read more about the separation of substances. So here, as you can see, separation of substances, we have studied in previous lecture, separation of substances. As I told you, जैसा मैंने आपको बताया था कि separation of substances का meaning है we have to separate some substances from the mixture. हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी मिक्सचर्स हैं जिनसे हमें सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है. हमने उसके पर्पस को पढ़ा था. Why it is needed? Why it is needed to separate the substances from the mixtures? क्योंकि प्रत्येक सब्सटेंस की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है. And substances are the materials made up of only one type of atoms and molecules. So students, in this lecture, we will learn how the activities will show the importance of separating the substances. So we have studied separation of substances in first lecture and we had seen, हमने देखा था कि सब्सटेंसेस को सेपरेट करना क्यों जरूरी है एंड व्हाट आर द मेथड्स. वो कौन कौन सी मेथड्स हैं, वो कौन कौन सी आपके रूल्स हैं जिसके थ्रू आप सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट द हैंड पिकिंग, वी हैव स्टडीड अबाउट द विनोइंग, द sieving, the threshing was there. Many methods we have studied. We have also studied about the sedimentation, decantation and filtration. So students, in this lecture we will perform various activities. इस लेक्चर में हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जिनसे हम ये सीखेंगे कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम कैसे करेंगे एंड व्हाट इज द पर्पस. सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द नीड, उसकी क्या जरूरत है, व्हाई वी सेपरेट इट, हम सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी. सो हियर you can see activity 3. We have already performed 2 activities. Now this activity is for, the aim of this activity is to show sedimentation, decantation and filtering process. इस एक्टिविटी में हमने जो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का मेथड पढ़ा था उसे हम प्रूफ करेंगे, उसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करने का प्रयास करेंगे और उसे अपने हाथों से करके उसे देखेंगे कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है. So students, for this experiment the materials required are the water. First we have to take water. Second we have to take soil. हमें क्या क्या लेना है, हमें वाटर लेना है, पानी लेना है, हमें मिट्टी लेना है, soil. थर्ड पीस ऑफ क्लॉथ, हमें एक कपड़े का टुकड़ा लेना है एंड फिल्टर पेपर. और हमें क्या लेना है, फिल्टर पेपर. व्हाट इज द मेथड, इसको एक्सपेरिमेंट करने का मेथड क्या है, हाउ वी विल परफॉर्म इट, हम इसे कैसे करेंगे. Mix some soil to water in a glass. We have to take a glass with water
and we have to mix some soil. उस ग्लास में पानी के अंदर हम थोड़ी सी मिट्टी को मिक्स करेंगे. Let it stand for half an hour. उसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, स्टैंड कर देंगे, उसको स्थिर रख देंगे. Observe the water carefully and note the observations. उसके बाद क्या करना है, हमें उस ग्लास को एब्जॉर्ब करना है. जब आपने एक ग्लास में पानी रखा और पानी में सॉइल को रख के उसको आपने मिलाया, उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू पुट इट स्ट्रेट. उसको आप स्थिर रख देंगे. This activity we have to perform. Now what we will see, आप क्या देखोगे, now slightly tilt the glass without disturbing the water. बिना पानी को डिस्टर्ब किए ग्लास को आप स्थिर रखेंगे. Let us water from the top flows another glass. Now filter the water through a piece of cloth. उस पानी को आप एक कपड़े से क्या करेंगे, छान लेंगे और उसकी जो इम्प्योरिटी सब्सटेंसेस सॉइल की होगी वो उस क्लॉथ के थ्रू छन जाएगी. In a piece of cloth, a small holes of pore remains between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. और वो कपड़े की जो छोटे छोटे पोर्स होंगी वो क्या करेंगी, वो एक फिल्टर का काम करेंगी. जो भी वाटर उस ग्लास में होगा, that will be pass that cloths, वो उस पोर्स से निकल जाएगा और जो सोइल के पार्टिकल्स उसमें अनडिसॉल्व थे वो क्लॉथ के ऊपर में छन जाएंगे. If the water is still muddy, अगर पानी फिर भी गंदा है, impurities can be separated by a filter that has even a smaller pores. A filter paper is one such filter that has a very fine pores in it. और उसके बाद अगर कुछ पार्टिकल्स, सोइल के पार्टिकल्स उस वाटर में प्रेजेंट हैं जिससे वो पानी का कलर मडी है, गंदा है, तो उसको आप फिर से फिल्टर कर सकते हैं बाय अ फिल्टर पेपर. और फिल्टर पेपर क्या होता है, इट इज अ फाइन फिल्टरिंग पेपर विच हैज अ वेरी फाइन पोर्स, जिसकी छिद्र काफी पतली होती है, काफी छोटी छोटी छिद्र होती हैं उसमें. और वो क्या करेगा, दैट फिल्टर पेपर विल रिफाइन द प्योर वाटर फ्रॉम दैट मडी वाटर. जो भी पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स बचे रहेंगे मडी वाटर में, वो फिल्टर पेपर के थ्रू छन के अलग हो जाएंगे. Solid particles in the mixture do not pass through and remain on the filter. और जो impurities particles होंगी जो कि मडी वाटर में प्रेजेंट थी वो उस फिल्टर पेपर पे जम जाएंगी, अलग हो जाएंगी. So students, we have studied about that all processes. Now we will read about evaporation. Now we will read about evaporation. Evaporation is a process in which water gets heated and makes water vapor. इसको आप हिंदी में वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं. तो we call it in हिंदी वाष्पीकरण. वाष्पीकरण की जो क्रिया है उसे हम evaporation कहते हैं. इवापोरेशन में क्या होता है, इसमें जब आप लिक्विड को गर्म करते हैं तो लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है और वो इवेपोरेट होके एयर में मिलती है और वो लाइटर होने के कारण स्काई में चली जाती है. तो हियर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, पानी का जो वेपर में बदलाव होता है, प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया जिससे पानी वेपर में बदल जाती है. जो वाटर है वो वेपर में बदल जाती है, उसे हम
इवेपोरेशन कहते हैं। Below its boiling point is called evaporation. जब आप पानी को गर्म करते हैं और वो गर्म होके वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। The process of evaporation takes place continuously whenever water is present. जब तक वाटर प्रेजेंट रहता है तब तक इवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। When there will be no water, there will be no evaporation. जब तक वाटर आप किसी यूटेंसिल्स में वाटर को कैप्ट करते हैं, उसको जब आप हीट करते हैं तो क्या होती है, जो वाटर की अमाउंट होती है वो गर्म होके वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। You can see that figure. There is a kettle in which the water is putting and we are giving heat to that water, and that water will get evaporated from that side. From that side this water gets evaporated. ये क्या हो रहा है, इस होल से evaporate होके बाहर निकल रहा है in the form of water vapor. वाटर वेपर के फॉर्म में ये पानी गर्म होके इधर से क्या हो रहा है, इधर से आउट हो रहा है। So students, when the liquids get heated, they convert into water vapor, and this process is called evaporation. Here, seawater contains many salt mixed in it. जैसा कि आप सब जानते हैं, जो समुद्र का पानी होता है, जो महासागर का पानी होता है, वो काफी खारा होता है। और खारा होने का कारण क्या है, उसमें सॉल्ट अवेलेबल होता है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्ट, वाटर ऑफ द सी एंड ओशियंस आर salty. Presence of salt make the water salty. One of these salt is the common salt. उसमें का जो एक salt है वो common salt है जो हम अपने खाने में यूज करते हैं। Students, it's very very important. When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका सी शो है, बैंक ऑफ द सी, यहाँ पे जो आप व्हाइट सब्सटेंसेस देख रहे हैं, दीज आर द कॉमन सॉल्ट। ये सब कॉमन सॉल्ट हैं। और जब इस समुद्र के पानी को छोटे छोटे पिट्स में इकट्ठा किया गया है, तो सूर्य की हीट के कारण जो वाटर है वो इवेपोरेट हो चुका है, पानी जो है वो इवेपोरेट हो चुका है, और उसमें जो सॉल्ट मिली हुई है वो वहीं पे रह गई है, और पानी इवेपोरेट हो चुका है, उसमें का सॉल्ट वहीं पे रह चुका है, जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। And through evaporation, by which process? By the process of evaporation. So in evaporation only water changed into water vapor. अगर आपने वाटर में कोई सब्सटेंस मिक्स किया है तो वो इवेपोरेट्स नहीं होगा, इट विल बी सेटल डाउन। वो क्या होगा, नीचे उस सरफेस में बैठ जाएगा। एंड दैट हैपेंस विद द सी वाटर। समुद्र के पानी के साथ भी ऐसा ही होता है, जो वाटर होता है उसका वो इवेपोरेट्स हो जाता है, उसमें जो मिक्सचर्स मिले रहते हैं, जो सब्सटेंसेस उसमें मिक्स रहते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। The water evaporates completely, leaving behind the solid salt. जैसा मैंने अभी कहा, जो पानी है वो completely evaporate हो जाती है, वो पूरी तरह से evaporate हो जाती है, और उसकी जो impurities है उसमें, like the common salt is the impurity of sea water, which will be settled in the surface. That will be in the form of solid salt that we use. Common salt is then obtained from its mixture of salt by further purification. और उस
सॉल्ट को फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए फैक्ट्रीज में ले जाते हैं और उसको आयोडीन के साथ मिक्स करके सप्लाई करते हैं, दैट वी यूज टू ईट, जिसे हम अपने घरों में खाने में यूज करते हैं। सो हियर यू कैन सी द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कैसे कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से हम एक्सटेंड करते हैं, उसको निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ evaporation. So students, it is clear that the salt is obtained from the sea water by the process of evaporation. समुद्र की जो खारा जल है, जो समुद्र का खारा जल है, उसमें की जो सॉल्ट है उसको हम इवापोरेशन के मेथड से, इवापोरेशन के प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। Now we will perform another activity, which is activity 4. In this activity we will see how evaporation of water containing salt. अभी हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्टिविटी में, कि जो हमारा इवापोरेशन ऑफ वाटर है वो सॉल्ट कैसे कंटेन करता है। ड्यूरिंग द इवापोरेशन हाउ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, हमें नमक कैसे मिलता है, इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू हमें नमक कैसे मिलता है, अभी हम देखेंगे। So what are the materials required for that? First is the beaker. We have to take a beaker. Second, we have to take water. Third, we have to take an stand, and fourth, a burner. With the help of burner, we will apply fire. Okay, we will give heat of the water. So method is what? The method of that experiment, that activity is allow the water to boil as shown. If we continue heating, water disappear completely. अगर आप पानी को लगातार गर्म करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरह पानी क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। The total amount of water will be evaporated और उसकी जो impurities होगी वो नीचे सरफेस पे सेटल डाउन हो जाएगी। In this experiment we will see. Now add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. In this activity we have to take a beaker and we have to mix some salt in it. आपको बीकर में पानी लेना है, उसमें 2 spoons of salt, 2 चम्मच आपको नमक लेनी है, and stir it with, उसको अच्छे से मिला देना है। Heat the beaker containing the salt water, और जिस पानी में आपने नमक मिलाया उसको हीट करना है, उसे हीट करना है। Let the water boil away. In this activity we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. इस एक्टिविटी में हम वाटर को उसके सॉल्ट से अलग करेंगे। So when we will give the continuous heat to that water, the water evaporates completely. और जो आपने उसमें salt मिलाया था 2 spoons, what will happen? The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. आपने evaporation already पढ़ा कि water का conversion, water का water vapor में convert होना evaporation कहलाता है। So we have to separate the mixture of water and salt. The process of evaporation takes place continuously whenever water is present. जब तक पानी प्रेजेंट रहेगा तब तक इवापोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। पानी खत्म, इवापोरेशन का प्रोसेस भी खत्म। In this activity, water is boiled out as vapors and salt is remained in the beaker. इसमें क्या होगी? इस एक्सपेरिमेंट में
आपने जो 2 स्पून ऑफ सॉल्ट मिक्स किया था उस वाटर में, वो सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में जमा हो जाएगी, वो उस सरफेस पे स्टोर्ड हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, और जो वाटर की अमाउंट थी वो इवेपोरेट हो जाएगी. So students, by the process of evaporation, we can separate the solid substance mixed in the water. Evaporation के थ्रू हम किसी भी मिक्स्ड सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं. So we have seen that in this experiment. Now methods of separation. Methods of separation, use of more than one method of separation. हमने बहुत सारे methods of separations के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने सिंगल सब्सटेंस को किसी सिंगल मिक्सचर से अलग किया है. हमने इम्प्योरिटीज को, स्टोन्स को, डर्ट को अपने ग्रेन्स से हैंड पिकिंग करके अलग किया. हमने ग्रेन से इम्प्योरिटीज को स्नोइंग मेथड से अलग किया. हमने सीविंग मेथड से इम्प्योरिटीज को सेपरेट किया. We have separated from the method of sedimentation, decantation and filtration. हमने बहुत सारे मेथड्स को यूज किया टू सेपरेट द सब्सटेंसेस. डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे मेथड का यूज किया और उसके एप्लीकेशंस को देखा. बट नाउ इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होती हैं, often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. लेकिन आप किसी एक मेथड से बहुत सारे सब्सटेंसेस जो किसी मिक्सचर में मिक्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते. उसके लिए हमें जो भी प्रोसेसेस हैं उनको रिपीट करना होता है. We have to do sedimentation also. In one time, we have to do decantation also. We have to do filtration also. So many methods will come together. जब ये सारे मेथड, सारे प्रोसेस एक साथ होंगे, उसको हम कहेंगे यूज ऑफ मोर देन वन मेथड्स ऑफ सेपरेशन. हमें क्या करना है, एक से ज्यादा मेथड्स ऑफ सेपरेशन का यूज करके सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है. तो लेट्स सी हियर. इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड्स. हमें क्या करना है, उन सभी मेथड्स का यूज करना है. इन दिस फिगर different separation methods. Here we are filtering it, here we are churning this, and here we are hand picking. So these all methods will come together to perform some activities. So we will see, for example, let's look. It will take a mixture of sand and salt. Hand picking would not be a practical method for separating this. Suppose कीजिए कि आपने बालू में नमक मिला दिया. You have mixed salt in sand. आपने बालू में नमक मिला दिया. Is it possible to separate by the method of hand picking? क्या आप उसको हाथ से चून के अलग कर सकते हैं? Never, कभी नहीं. So students, in that type of situations, इस तरह की situations में हमें सारी methods को separately use करना पड़ता है. And by this, we can finally able to separate all the different substances. उसके बाद हम सभी अलग अलग substances को separate कर पाएंगे. In order to separate them, we keep this mixture in a beaker and add some
वाटर टू इट। हम क्या करेंगे, सैंड और सॉल्ट को अलग करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। वी पुट सम वाटर ऑन दैट मिक्सचर, हम उस मिक्सचर में पानी को ऐड करेंगे। आफ्टर एडिंग द वाटर एंड लीव इट असाइड फॉर सम टाइम, उसको कुछ समय के लिए एक जगह स्थिर रख देंगे। What will happen? We will see that the sand settling down and the bottom. हम कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो उसमें बालू मिक्स था वो नीचे सेटल हो जाएगा। आपने जो नमक और बालू का मिक्सचर बनाया था, आपने जब उसमें पानी डाला, आपने उसको स्थिर किया और उसको स्थिर रख दिया, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम द सैंड पार्टिकल्स, जो बालू के कण होंगे, वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे, जो हम लोगों ने सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में पढ़ा था। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। और वो जो बालू होगा वो पानी के सरफेस पे, आपने जिस बीकर में उस पानी को रखा होगा, आपने जिस ग्लास में उस पानी को रखा होगा, उसके सरफेस पे, उसके बॉटम सरफेस पे वो बालू के कण सेटल डाउन हो जाए। आफ्टर दैट what will happen? The sand can be separated by decantation or filtration। देखिए, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के मेथड से आप क्या करेंगे, आप उस सैंड को अलग कर लेंगे। हमने डिकेंटेशन में पढ़ा था, when the impurities get settled, जब impurities किसी भी लिक्विड की सेटल्ड हो जाती है तो वो लेयर्स बनाती है। impurities की एक लेयर होगी और वाटर की दूसरी लेयर होगी। और decantation is a process in which we separate the different layers of the liquid। और हम क्या करते हैं डिकेंटेशन में, हम लिक्विड्स को सेपरेट कर लेते हैं। यू कैन डू इट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑल्सो, तो आप फिल्टर करके भी अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड में हमने देखा कि वी यूज अ बीकर and we use a straw paper, a filter paper, we put the liquids on it, और जो impurities होती हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर छन जाती हैं और जो लिक्विड होती है वो नीचे बीकर में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, आपने बालू में नमक मिलाया, आपने उसमें पानी डाला, उसको स्टिर किया, कुछ देर रखने के बाद बालू के कण क्या होंगे, वो ग्लास के या बीकर के सरफेस में सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन होने के बाद आपने उस लिक्विड को उस बालू के कण से सेपरेट कर लिया बाय द मेथड ऑफ डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, you can see in that figure, through the filter paper or by the process of decantation, you can separate the substances from sand to water. The sand particles will be removed here and the water with salt. This water is with salt, क्योंकि salt क्या हो चुका है, वो पानी में घुल चुका है। The salt is soluble in water, but the sand is not. आपने जो बालू में नमक मिलाया था वो नमक पानी में घुल चुकी है, but the sand will never dissolve in water। लेकिन जो बालू के कण हैं वो कभी भी पानी में नहीं घुलेंगे। So this water is with salt also. This water is mixture of salt and water. This water includes salt also. इस पानी में salt की मात्रा भी present है। After that, what we will do? Now
we need to separate salt and water from the decanted liquid. जो लिक्विड आपने डिकेंटेड किया है by the process of decantation, उसे आपको क्या करना है? You have to separate the salt. उसमें से आपको salt को सेपरेट करना है. For this, we transfer this liquid to a kettle and close to lid. The kettle is heated for some time. अब आप क्या कर रहे हैं? आप उस पानी को evaporate करेंगे. आप उस पानी को क्या करेंगे? evaporate करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस एक्टिविटी में हमने सारे प्रोसेस को यूज किया. हमने पहले सेडिमेंटेशन किया, फिर डिकेंटेशन किया, अभी हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं. तो हियर द केटल इज हीटेड फॉर सम टाइम. उस केटल को आप क्या करेंगे? हीट करेंगे. आप देखेंगे we notice steam coming out from the spout of the kettle. क्या होगी? उस केटल से स्टीम बाहर निकलेगी. And then we hold a metal plate with some ice on just above the spout of the kettle. Let all the water in the kettle boil off. और क्या करेंगे? उस पानी को हम कंडेंस भी करेंगे. The water which is getting evaporated, जो पानी इवापोरेट हो रही है ड्यू टू हीट, वी आर गेटिंग इट कूल. हम उसे ठंडा करके कंडेंस कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. और जब पानी को हम कंडेंस करते हैं, जब उसको हम कूल करते हैं, तो वाटर वेपर फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. When the all water get evaporated, जब सारे पानी इवापोरेट्स हो जाएंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया, जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. जो सॉल्ट उस वाटर में मिक्स थी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और सारी पानी जो उस केटल में थी वो इवेपोरेट होके कंडेंस होके फिर एक बीकर में स्टोर हो जाएगी. स्टूडेंट्स, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ दिस ऑल methods we will able to separate sand together, salt together and water. This is the use of all methods. So here you can see through that beaker all the water get evaporated and they are get cooling back again and they are storing to a bowl. और ये फिर जो पानी इवापोरेट हो रहा है उसको हम आइस के हेल्प से कूल कर रहे हैं और उसे फिर हम एक बाउल में कलेक्ट कर रहे हैं. तो बाय द मेथड ऑफ दिस वी हैव टू बी एबल टू सेपरेट द सॉल्ट टुगेदर, द सैंड टुगेदर एंड द वाटर टुगेदर. जिस पानी में आपने सैंड और सॉल्ट को मिक्स किया था, हमने क्या किया? उसको अलग अलग कर लिया by the methods of sedimentation, decantation, filtration and condensation and also evaporation. This all processes, this all methods acts together. हमने सभी methods का use करके सभी pure substances को separate कर लिया. Now when this steam comes into contact with the metal plate cooled with ice, क्या होगा? वो जो वेपर है condense and forms liquid water, वो जो वेपर है वो liquid water में convert हो जाएगा. And this process of conversion of water vapor into liquid, vapor to liquid, it's called condensation. And this is the process by which the clouds form. By the process of condensation, the clouds form. जो बादल बनने की प्रक्रिया होती है हम उसे कंडेंसेशन. तो आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवापोरेटेड, जब पूरा पानी इवापोरेट हो गया, सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल. सॉल्ट क्या हो गया? उस केटल में
सेटल डाउन हो गया एंड वी हैव द सेपरेटेड, हमने क्या क्या सेपरेट कर लिया, हमने सॉल्ट को अलग सेपरेट कर लिया, हमने सैंड को अलग सेपरेट कर लिया और हमने वाटर को भी अलग सेपरेट कर लिया. So students, using processes of decantation, filtration, evaporation and condensation, we have used the 4 processes. Here decantation we have used to separate the liquid from the impurities. We have used filtration to separate fine particles of sand from the water. We have used evaporation to evaporate all the waters from the salt, and we have used condensation to cool the water vapor to convert water. So in this process we have used these all methods to separate salt together, sand together and water together. So students, that type of mixtures can also be separated. इस तरह के mixtures को भी हम separate कर सकते हैं. Now just think, can water dissolve any amount of a substance? क्या पानी के अंदर हम किसी भी अमाउंट के सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं? No. The answer is no, because it depends on the amount of water. पानी की जितनी मात्रा होगी, उसकी जितनी एबिलिटी होगी डिसॉल्व करने की, वो उतना ही मटेरियल को अपने में डिसॉल्व करेगा. सपोज आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, तो 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप एक लिमिट तक ही शुगर या सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं. दैट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ डिसॉल्विंग द सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. जितनी लिक्विड की वॉल्यूम होगी, जितनी उसकी आयतन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही वो सब्सटेंसेस को अपने में डिसॉल्व करेगा. So if the water is fully dissolved with salt and sugar, it has no power to dissolve more salt or more sugar. That type of water, that type of solution of water is called saturated solution. इस तरह के solution को हम saturated solution कहते हैं, which we will discuss in the next slides. So many substances dissolve in water and form a solution. बहुत सारे substances को आप पानी में क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं. और जब substances को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसे हम solution, we call it solution, because the solution is mixture of solute and solvent. So here solution is a mixture of solute and solvent. Solute will be salt and sugar, and solvent will be the water. And this water is always bigger than that of solute. ये water हमेशा क्या होगा? Solute से बड़ा होगा. The amount of water will be more than that of solute. So students, if we are taking a solution in which more solute cannot dissolve, अगर हम ऐसा solution लेते हैं जिसमें और सॉल्यूट की मात्रा को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, वैसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, which we will see in the next slides. Here you can see the activity is here.
pour half a cup of water in the beaker, add 1 teaspoon of salt and stir it well. उसको अच्छे से मिलाना है until the salt dissolve completely, जब तक वो salt completely उस पानी में dissolve नहीं हो जाता है. Again add a teaspoon of salt and stir well. फिर से आपको एक चम्मच नमक लेना है और उसको फिर से उसमें मिक्स करना है. Go on adding salt. आप इसको ऐड करते जाइए. You have to be continue. 1 teaspoon of that time and stir. What you will find? आप क्या देखेंगे? After adding a few spoons of salt, we find that some salt remains undissolved. उसके बाद क्या होगा? वो salt उसमें dissolve नहीं होगा and settles at the bottom of the beaker. और वो beaker के नीचे बैठना शुरू कर देगा. And this means that no more salt can be dissolved. अब उस liquid में, उस solution में आप और ज्यादा salt dissolve नहीं कर सकते. So in the amount of water we have taken, आपने जो amount of water लिया है उसमें आप और ज्यादा salt mix नहीं कर सकते and the solution is now said to be saturated. That I told you, जो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी solution में अगर हम solute की मात्रा को ऐड नहीं कर पाए, वो completely ऐड हो चुका है, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यू हैव टेकन अ लिटिल मोर ऑफ वाटर, लिटिल वाटर इज देयर. तो इस वाटर में जो कैपेसिटी होगी डिसॉल्व करने की, वो उतनी ही सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा. इस वाटर की कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्यूट को आप इसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते. और वैसा सॉल्यूशन जिसकी सॉल्वेंट ने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सॉलिड को डिसॉल्व कर लिया है, अब वो और नहीं कर सकता है, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ वी विल सी अबाउट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होती हैं, we will discuss. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat. Students, always remember, saturated solutions can mix more solute when they will be heated. अगर आप किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तब उसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी इनहैंस्ड हो जाती है, बढ़ जाती है. किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप जब गर्म करते हैं, उसको आप हीट देते हैं, तो वो और ज्यादा सॉल्यूट को अपने में डिसॉल्व कर सकते. तो हियर add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. अब उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे. And we find that the now salt dissolve in it. उसमें क्या होती है, वो salt dissolve हो जाती है. Such solution which contains more amount of substances dissolved in it than required of from a saturated solution is called super saturated solution. इस solution को आपने हीट कर दिया और वो और सॉल्यूट को अपने में डिसॉल्व कर सकता है, उसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सेकेंड वी विल सी, वी नोटिस दैट द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम. हमने देखा सॉल्ट जो है वो बीकर में बैठने लगा, अब वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है. ऑफ द बीकर अगेन अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो. सपोज आपने 1 बकेट ऑफ वाटर लिया है और उसमें आप 1 टीस्पून ऑफ शुगर या सॉल्ट मिक्स करते हैं. जब आप एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच लिटिल मोर 1 चम्मच सॉल्ट या शुगर डालते हैं तो इजिली डिसॉल्व हो जाता है, because the amount of solvent is too much.
So that type of solution are called unsaturated solution. उसको हम क्या बोलते हैं? Unsaturated solution, जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो और सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो, सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड विच डिसॉल्व द सॉल्यूट, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे पानी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और सॉल्यूट जिसे आप मिक्स कर रहे हैं उसमें, जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर, उसकी मात्रा कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। So students, in this chapter we have studied more about the solutions, more about the substances and all the methods by which we can separate the substances. And what are substances? Substances are the materials which are made up of one or more than one type of atoms. So students, this chapter, the separation of substances, was indicating us about the methods of separations that we have studied. Okay students, thank you so much.